Good morning, students. How are you? I hope you are feeling well at your places. Myself, Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we are discuss about the revision of chapter 7 triangles. Triangles हम already videos में discuss कर चुके हैं. डाउट सेशन भी हो चुका है. हम एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उन पे भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. नाउ ट्राइंगल्स, फर्स्ट इज व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मीन्स द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. अगर दो फिगर्स सेम शेप और सेम साइज के हैं, या ये कहें कि दिस टू फिगर्स आर ओवरलैप टू ईच अदर. क्लियर? दो फिगर जब एक दूसरे को कवर्ड कर लेते हैं, नाउ दिस टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंड इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर आपके पास जो रूल्स है, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, उसमें फर्स्ट रूल इज रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसमें फर्स्ट रूल है आपके पास SAS रूल, जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड. इफ द टू ट्राइंगल्स, दिस ट्राइंगल इज ABC एंड दिस ट्राइंगल इज PQR. क्लियर? दिस ट्राइंगल इज ABC and this triangle is PQR. Now in these two triangles, SAS rule says the two triangles are congruent by SAS rule if the two sides. Clear? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, यानी जिन दो साइड्स पे ये एंगल बन रहा है, नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड included angle. So two side and its included angle are equal, then these two triangles are congruent by SS rule. Clear? So we have to consider triangle in triangle ABC and triangle PQR. Now in these two triangles, AB is equals to PQ and angle BAC is equals to angle QPR and AC equals to PR. आप देख सकते हैं these are two sides, these are two corresponding side of the triangle ABC and PQR. AB PQ के इक्वल है, AC PR के इक्वल है, and its included angle, जिन दो sides पे एंगल बन रहा है, this is angle A and angle P, then angle BAC is equals to angle QPR. तो by SS rule of congruency, by SS rule, these two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो हमें कोई भी कंडीशन ट्राइंगल्स के अंदर प्रूव करनी है तो पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के अकॉर्डिंग उसको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा. कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया ये दो फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे. दोनों फिगर्स एक दूसरे को जब कवर्ड कर देंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर? तो कई ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो बाय CPCT वी हैव टू प्रूव इट्स साइड्स आर इक्वल और ऑल्सो इट्स एंगल्स आर इक्वल. क्लियर? नेक्स्ट इज AC रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. AC रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मतलब एंगल साइड एंगल. नेक्स्ट रूल इज ASA रूल. क्लियर? ASA रूल को हम यहाँ पे समझ सकते हैं. these are two triangles, this triangle is ABC, this triangle is ABC and this triangle is PQR. Clear? Now in these two triangles, what we can say, ASA means the two corresponding angles of triangle ABC is equals to triangle PQR. ट्राइंगल ABC का एंगल B ट्राइंगल PQR के एंगल Q के इक्वल हो, एंगल C एंगल R के इक्वल हो, और जिन साइड्स पे ये एंगल्स बन रहे हैं दिस साइड इज कॉल्ड इंक्लूडेड साइड. क्लियर? तो two angles and included side of one triangle is equals to the two angles and included side of another triangle. Then
these two triangles are congruent by ASA rule. So we have to consider these two triangles in triangle ABC and triangle PQR. Now in these two triangles, angle B is equals to angle Q. Clear? BC is equals to QR and angle C is equals to angle R. Now by angle side angle, and we can say by ASA rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. ट्राइंगल साइड एंगल रूल क्लियर हो गया सभी को? एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं. इफ द two triangles, two included angle and its included sides are equal, then these two triangles are congruent by ASA rule. Clear? Next is AS rule. AS rule of congruency. Next is angle side. AS rule of congruency. This triangle is ABC and this triangle is PQR. This triangle is ABC and this triangle is PQR. Now in these two triangles, AAS rule के अकॉर्डिंग आपके पास टू एंगल एंड वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड. सपोज दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. क्लियर? और यदि ये इंक्लूडेड साइड इक्वल होती है तो यहां पे हम ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं. बट वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई? AB PQ के इक्वल हो जाए या AC PR के इक्वल हो जाए, देन दिस साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. क्लियर? तो इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR. Now in these two triangles, what we can say, angle B is equals to angle Q, angle C is equals to angle R and AB is equals to PQ. These are corresponding sides, not included side. अगर included side लेंगे तो वो आपके पास हो गया ASA rule of congruency, और जब हम corresponding sides लेंगे तो this is the congruency rule of AS rule. Now this is angle side. तो by AS rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Clear? This is the third rule of congruency. Next rule is triple S rule of congruency. Triple S rule of congruency नेम से पता चल रहा है, साइड 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 means the three corresponding side of one triangle is equal to the three corresponding side of another triangle. Then by triple S rule, these two triangles are congruent. Now this is triangle ABC and this triangle is PQR. This triangle is ABC and this triangle is PQR. Now in these two triangles, what we can say, corresponding side AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AC is equals to PR. Now by triple S rule, these two triangles are congruent. Now in triangle ABC and triangle PQR, तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम देखें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. See here. Now in these two triangles, what we can say, corresponding side AB PQ के इक्वल हो जाए, BC QR के इक्वल हो जाए और AC PR के इक्वल हो जाए, तो by triple S rule of congruency these two triangles are congruent. तो AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AC is equals to PR. Now by triple S rule of congruency, triple S rule of congruency से by triple S rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. क्लियर? तो हमने कॉन्ग्रुएंसी का रूल ऐसे पढ़ लिया है. ASA rule of congruency, AS rule of congruency, this is triple S rule of congruency. These are triple S rule of congruency. Clear? Next is RHS rule of congruency. RHS rule से नेम पता लग रहा है बेटा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड. यानी ये जो RHS rule of congruency, इट्स अप्लाइड ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल. हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाइड करते हैं. नेक्स्ट इज RHS rule. क्लियर?
RHS रूल कहता है कि इफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, दिस ट्राइंगल इज ABC, दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज ABC and this right angle triangle is PQR. Clear? Now this is triangle PQR, and in these two triangles this triangle is PQR. Clear? RHS रूल के अकॉर्डिंग हम राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर देखें तो इट्स फर्स्ट नीड इट्स हाइपोटेन्यूज आर इक्वल। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स पे हमें RHS रूल जो यूज करना है, RHS रूल के लिए आपके हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए। क्लियर? हाइपोटेन्यूज इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR. Now in these two triangles hypotenuse AC is equals to hypotenuse PR. Clear? इसके साथ साथ कोई भी वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, या तो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए या बेस इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, AB PQ के इक्वल है, एंड एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के लिए फर्स्ट हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड या तो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए या बेस इक्वल हो जाए, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? तो बाय RHS रूल व्हाट वी कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया? आपका जो 7.4 का पार्ट है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल, वो इन दिस सेशन 2020-21 दिस इज योर डिलीटेड पार्ट। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। यस, वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का अपन क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.1। रीड द क्वेश्चन, लाइन L बाइसेक्ट एन एंगल A। आपको यहां पे दे रखा है दीज आर टू रेज, दिस इज दिस हियर टू गिवन टू रेज एंड अ लाइन विच बाइसेक्ट एंगल A। एक लाइन हमने ड्रॉ करी है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब डिवाइड द एंगल इन इक्वल टू पार्ट्स। क्लियर? रीड अगेन, BP एंड BQ। हमने यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर्स डाले। क्लियर? दिस इज BP एंड BQ। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीड करें, B इज एनी पॉइंट ऑन L, दिस लाइन रिप्रेजेंट बाय L। रीड अगेन क्वेश्चन, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। एंगल A की जो आर्म्स हैं उस पर हमने परपेंडिकुलर डाला है, दिस इज BP and BQ। क्लियर? तो ये टू राइट गिवन, फर्स्ट हम गिवन लिखें तो लाइन L बाइसेक्ट एंगल A एंड BP and BQ is perpendicular to the lines which passes through A। A से जाने वाली जो लाइन्स हैं इन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, which passes through A। प्रूव करना है, टू प्रूव पे आ जाए। व्हाट इज टू प्रूव? फर्स्ट इज ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB, and second is BP is equals to BQ। BP BQ के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? अब हम प्रूफ पे आते हैं। वे टू कंसीडर दिस टू ट्राइंगल्स। प्रूफ पे आए, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। वे टू कंसीडर दिस टू ट्राइंगल्स APB एंड AQB। व्हाट वी कैन से, यहाँ देखिए आप, AB तो आपके पास कॉमन साइड है। क्लियर? और यहाँ पे ये एंगल, सी केयरफुली,
दिस एंगल एंड दिस एंगल आर 90 डिग्री इन दिस टू ट्राइंगल्स। ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करी तो व्हाट वी कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस टू एंगल्स एंड नॉट इट्स इंक्लूडेड साइड, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो दो एंगल और उसकी जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है तो बाय एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स व्हाट वी कैन से एंगल एपीबी इज इक्वल्स टू एंगल AQB, these are 90 degree, clear। next is angle BAQ is equals to angle BAP you have to given, and AB equals to AB is the common side। AB equals to AB क्या है यहाँ पे common side, clear। तो what we can say by this is angle side। तो by AS rule triangle APB is congruent to triangle AQB, clear। और सेकंड पार्ट में देखें तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT। ध्यान से देखिए, जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, कवर्ड कर जाएंगे, तो बाय CPCT इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देन BP इज इक्वल्स टू BQ। नाउ प्रूव द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। पहले हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, और ओवरलैप करते इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Read question number 7. Question number 7 is AB is a line segment and P is the midpoint। आपको AB एक लाइन सेगमेंट गिवन है और P इसका मिड पॉइंट है। यू हैव टू गिवन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन इक्वल टू पार्ट्स। रीड द क्वेश्चन अगेन। P is the midpoint of AB is a line segment and P is its midpoint। D and E are points on the same side of AB। AB के सेम साइड पे दो पॉइंट्स हैं, आपको दे रखे हैं D and E। These two points are on the same side of AB। Read the question again। आपको दे रखा है यहाँ पे, अगर हम फिगर को ज्वाइन कर लेते हैं, वे टू ज्वाइन दिस पॉइंट्स, ज्वाइन PD, नेक्स्ट PE, next AD and BE। Read the question again। क्वेश्चन में दे रखा है एंगल BAD। BAD is this angle and equals to एंगल ABE। AB is this angle, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्लियर। रीड द क्वेश्चन अगेन। एंगल EPA, एंगल EPA इज दिस एंड एंगल DPB इज दिस। दिस एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर। रीड द क्वेश्चन अगेन। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DAP। ट्राइंगल DAP इज द एंगल combined by this plus this, clear, equals triangle DAP is congruent to triangle EBP। EBP is this triangle and DAP is this triangle, clear। Now prove that triangle DAP is congruent to triangle EBP and second AD equals to BE। तो first way to write given। given है आपके पास P is the midpoint, P is the midpoint of AB and DE are on the same side of AB, clear। And also you have to give an angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB। प्रूव करना है आपको। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल DAP
is congruent to triangle EBP एंड सेकंड प्रूव करना है AD is equals to BE। क्लियर? तो गिवन किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन, सेकंड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। यदि आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है इसमें तो यू हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ पार्ट इज प्रूफ। क्लियर? तो अब हम प्रूफ पे आते हैं क्योंकि हमने इसमें कोई कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं किया है। तो प्रूफ इज वी हैव टू कंसीडर ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। प्रूफ में आए, प्रूफ इन ट्राइंगल DAP and triangle EBP। now in these two triangles what we can say, यहाँ पे देखें दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है। एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल EBP। क्लियर? दोनों ट्राइंगल्स के लिए अगर देखें अपन DAP और यहाँ पे EBP में P मिड पॉइंट है तो AP इक्वल्स टू PB हो गया। और ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर अपन देखें तो इन दोनों एंगल्स की ये इंक्लूडेड साइड है। और जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल और जब इंक्लूडेड साइड लेते हैं तो वी हैव टू यूज AS रूल, और जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो हम वहां पे AS रूल यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में एंगल DPB इज इक्वल्स टू DPB इज इक्वल्स टू एंगल EPA। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? बट अगर दोनों ट्राइंगल्स को लेना है तो हमें एंगल का ये पार्ट जब हम इसमें ऐड करेंगे तब जाके ये कंप्लीट एंगल बनेगा इस ट्राइंगल का। तो वी हैव टू ऐड व्हाट इज EPD बोथ साइड्स। दोनों एंगल्स में हम एंगल EPD दोनों तरफ ऐड कर दें। DPB में भी हमने एंगल EPD ऐड कर दिया और एंगल EPA में भी एंगल EPD को हमने ऐड कर दिया। क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे DPB इज दिस एंगल और इसमें जब हमने EPD को ऐड कर दिया दिस इज कंप्लीट एंगल EPB, एंगल EPB। क्लियर? और जब हमने EPA में EPD को ऐड कर दिया दिस इज कंप्लीट एंगल DPA एंड AP इक्वल्स टू PB क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? तो व्हाट वी कैन से टू एंगल एंड इट्स इंक्लूडेड साइड, और जब दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल होती तो बाय ASA रूल ऑफ कॉन्करेंसी, ASA रूल ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। और यही हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फर्स्ट यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP एंड सेकंड पार्ट पे आए तो सेकंड पार्ट बाय CPCT। जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को कवर्ड कर लेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। देन बाय CPCT AD इज इक्वल्स टू BE। AD किसके इक्वल हो गया? BE के। नाउ प्रूव द कंडीशन। क्लियर बेटा? तो बेसिकली एक्सरसाइज 7.1 में जो कॉन्करेंसी रूल यूज करेंगे अपन वो आपके पास ASA रूल, AS रूल और SAS रूल को यूज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? Isosceles triangle property what is? If triangle ABC is an isosceles triangle, triangle ABC एक isosceles triangle है। Isosceles triangle means its opposite sides are equal। Clear? तो थ्योरम कहते हैं कि यदि किसी isosceles triangle की two opposite sides equal है तो its opposite angles are also equal। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? इफ, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की यदि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे।
और इसका कन्वर्स होता है कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे 7.2 पे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 रीड द क्वेश्चन। ट्राइंगल यू टू गिवन इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आपको क्या गिवन है? AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AD BC पर परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्लियर? शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो गिवन क्या है आपके पास? इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular bisector of BC। क्लियर? टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। ध्यान से देखो बेटा, इसमें बहुत इजी इसको प्रूव करना। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स, एक तो ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया, व्हाट इज ट्राइंगल ADB। एक तो हम ट्राइंगल ADB को कंसीडर कर रहे हैं, दिस ट्राइंगल। क्लियर? और एक ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम ट्राइंगल ADC। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स व्हाट वी कैन से, दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपके पास ये कॉमन साइड हो गई। क्लियर? दिस आर कॉमन साइड। ये जब इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो BD DC के इक्वल हो गया और इन दोनों साइड के बिटवीन में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज इंक्लूडेड एंगल। तो टू साइड एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, देन बाय S's रूल ऑफ कॉन्करेंसी दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। तो वी टू कंसीडर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB, in triangle ADB and triangle ADC. Now in these two triangles what we can say, AD equals to AD is the common side, AD equal to AD common side है। angle ADB is equals to angle ADC is equals to 90 degree। clear? and BD equals to DC already given है। BD किसके इक्वल है? DC के। यू टू गिवन क्योंकि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाय S's रूल ऑफ कॉन्करेंसी साइड एंगल साइड, बाय S's रूल व्हाट वी कैन से ट्राइंगल ADB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ADC। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए तो दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। तो ओवरलैप करते ही बाय CP/CT इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB AC की इक्वल हो गई तो व्हाट वी कैन से ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? ट्राइंगल ABC क्या बन गया अपने पास? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। नेक्स्ट इज 7.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीड क्वेश्चन नंबर 6th of exercise 7.2. Read the question. Triangle ABC is an isosceles triangle. फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। यस, दिस इज triangle ABC. This point is suppose A and this triangle ABC is an isosceles triangle. Clear? Isosceles triangle है तो its opposite sides are equal. Read the question again. Side BA is produced at the point D. Point हमने BA को produced किया कहाँ तक? Point D तक. Such that AD is equals to AB, AD और AB भी इक्वल है। क्लियर?
तो आपको प्रूव करना है कि जो एंगल बी सी डी है दिस द सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंगल बी सी डी को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो फर्स्ट वे टू राइट गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, साइड बी is produced to point D and join DC, and also you have to given AD is equals to AB, ये आपको गिवन है। क्लियर? प्रूव करना है, टू प्रूव पे आ जाए, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? अब अपन प्रूफ पे आते हैं। Now in triangle ABC you have to given AB equal to AC, ये given है। क्लियर? जब किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल है तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन से, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से एंगल ABC इक्वल होगा किसके, एंगल ACB के। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? और ऑलरेडी गिवन है आपको ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी। क्लियर? अब ए बी ए सी के भी इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो व्हाट वी कैन से देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू ए सी। और यहाँ ट्राइंगल ए डी सी में जब अपोजिट साइड इक्वल है तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी AD equals to AC, then angle ADC is equals to angle ACT। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब यहां पे देखें एंगल ABC, एंगल ABC इज दिस, और इसमें हम ऐड कर देते हैं एंगल ADC। क्लियर? और यहां पे देखें ACB में कितना ऐड कर दिया, ACB में हमने ऐड कर दिया एंगल ACD। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब यहां पे एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू, यहां देखो आप एंगल ACB ये एंगल है और ACD ये एंगल है। जब इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाए। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल्स टू एंगल BCD। क्लियर? और जो एंगल ABC पे बन रहा है वही एंगल DBC पे बन रहा है, तो हम एंगल ABC को DBC भी लिख सकते हैं। जो एंगल ADC पे बन रहा है वही एंगल BDC पे बन रहा है, इक्वल टू एंगल BCD। नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वे टू कंसीडर ट्राइंगल BCD, हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं अपन, ट्राइंगल BCD। तो इन ट्राइंगल BCD एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी हैव टू यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नाउ बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 की हम हेल्प लेते हैं तो एंगल DBC प्लस BDC की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी, एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, एंड BCD प्लस BCD इज ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। और कैलकुलेट कर लें, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। Now angle BCD is equals to 90 डिग्री। Now prove the condition, हमें प्रूव यही करना था कि एंगल BCD कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। नेक्स्ट इज 7.3 बेस्ड ऑन RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर सेकंड of exercise 7.3. read the question. AD is an altitude of an isosceles triangle। आपको ABC एक isosceles triangle given है, ABC is an isosceles triangle
Isosceles triangle means its opposite sides are equal and its opposite angles are also equal. Clear? Read the question again. AD is an altitude. हमने इस ट्राइंगल ABC में एक altitude ड्रॉ किया. Altitude means it is perpendicular to the side BC. Clear? Read the question again. Show that AB bisect BC and AD bisect angle A. तो first way to write given in triangle ABC क्या given है? Side AB equal है किसके? AC के. Clear? And AD is perpendicular to BC. AD perpendicular है किस पे? BC पे. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव फर्स्ट इज AD bisect BC. AD bisect BC and second is AD bisect angle A. हमें प्रूव करना है कि जो AD है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है. क्लियर? तो प्रूफ पे आए तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC वी हैव टू कंसीडर दिस टू ट्राइंगल्स. अब यहाँ पे देखें तो RHS रूल फॉलो हो रहा है बेटा. यहाँ पे देख सकते हो ये एंगल 90, ये भी 90. क्लियर? These are the hypotenuse of these two triangles. So hypotenuse AB equal to hypotenuse AC because this is the equal side of isosceles triangle and AD is the common side. Clear? So in these two triangles what we can say hypotenuse AB equal to hypotenuse AC. Reason is you have to give it. Given a question में AD equals to AD is the common side. AD और AD यहाँ पे क्या है? कॉमन साइड है. और एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC कितना है? 90 डिग्री. क्लियर? तो बाय RHS रूल ऑफ कॉन्करेंसी, बाय RHS रूल व्हाट वी कैन से ट्राइंगल ADB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ADC. हमने यही पढ़ा है RHS रूल में कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के हाइपोटेनस इक्वल हो जाए and its one corresponding sides are equal, then by RHS rule of concurrency these two figures are overlap to each other. अब इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट अब यहाँ पे देखो बेटा डायरेक्टली प्रूव हो रहे हैं क्योंकि जब दो फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, ये दोनों फिगर्स एक दूसरे को कवर्ड कर लेंगे, तो व्हाट वी कैन से दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल. तो फर्स्ट पार्ट को हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट बिकॉज ट्राइंगल ADB is concurrent to triangle ADC. Now by CPCT BD is equals to DC, therefore AD bisect BC. जब दो फिगर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे तो AD जो है वो BD को बाइसेक्ट BC को बाइसेक्ट करेगी. क्लियर? बाइसेक्ट करने का मतलब BD is equals to DC. Now first part is proved. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट है आपके पास AD बाइसेक्ट एंगल A. तो यहां भी ये जो सेकेंड पार्ट है वो भी हम CPCT से प्रूव कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट बिकॉज ट्राइंगल ADB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ADC. तो बाय CPCT. CPCT का मतलब जब ये ओवरलैप करके इस ट्राइंगल पे आ जाएगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं? दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. तो बाय CPCT एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC, देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A. क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन आ गया समझ में? नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3. 7.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 7.3. Read the question. B and CF are two equal altitudes of triangle. B and CF are two equal altitudes of triangle ABC. Triangle ABC आपको given है. Now in this triangle ABC, this triangle ABC
We have to draw the two altitudes. This is BE and this is CF. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि इन एल्टीट्यूड्स की जो लेंथ्स हैं वो इक्वल है, मीन्स BE इज इक्वल्स टू CF. क्लियर? देन यू हैव टू प्रूव बाय RHS रूल ऑफ कॉन्करेंसी प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए या तो हम इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल कर दें, AB AC के इक्वल कर दें, या अपोजिट एंगल्स एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया तो भी हम कह सकते हैं दिस टू ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्लियर? तो फर्स्ट वे टू राइट गिवन व्हाट इज इन ट्राइंगल ABC BE and CF are equal altitudes. प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. क्लियर? और ऑलरेडी क्वेश्चन में जब मेंशन होगा तो हमें उसी कॉन्करेंसी रूल को फॉलो करना है. यहाँ पे RHS रूल का है तो ये टू प्रूव दिस क्वेश्चन बाय RHS रूल ऑफ कॉन्करेंसी. तो प्रूफ पे आए. नाउ वी हैव टू कंसीडर ट्राइंगल इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC. हमने ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए, एक तो BEC दिस ट्राइंगल and triangle BFC this triangle. क्लियर? और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 90 के अपोजिट साइड इज योर हाइपोटेनस. तो व्हाट वी कैन से इन दिस टू ट्राइंगल्स हाइपोटेनस इज द कॉमन साइड ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स. तो इन दिस टू ट्राइंगल्स हाइपोटेनस BC is equals to hypotenuse BC. Reason is common side. Clear? Angle BEC equals to angle BFC is 90 degree already given, and BE is equals to CF ये भी क्वेश्चन में गिवन है. और RHS रूल ऑफ कॉन्करेंसी में आपने पढ़ा है कि किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स का यदि हाइपोटेनस इक्वल हो जाए and one corresponding side are equal, then by RHS rule of congruency these two triangles are congruent. तो by RHS rule की congruency से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BEC is congruent to triangle BFC. और जब ये दोनों ट्राइंगल्स congruent हो गए तो इट्स ओवरलैप टू ईच अदर, देन बाय CPCT एंगल FBC इज इक्वल्स टू एंगल ECB. अब आप देख सकते हैं जो एंगल FBC पे सबटेंड कर रहा है दिस ऑल्सो सबटेंड ऑन एंगल ABC. अगर हम इस रे को आगे एक्सटेंड कर देते हैं तब भी एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो व्हाट वी कैन से, और ऑल्सो वी कैन से एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB. और जब किसी ट्राइंगल की अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन isosceles triangle. This triangle ABC is an isosceles triangle. Clear all of you? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर? तो मैंने जितने भी हमारे रूल्स ऑफ कॉन्करेंसी हैं उन पे बेस सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे उनका रिवीजन ले लिया है. प्रैक्टिस करनी है इन सभी क्वेश्चंस की. थैंक यू सो मच.